Hi, sir. How are you doing? I'm good, sir. This is Sarvika this side, and on behalf of Team Tarangan and Thakur College of Science and Commerce, I welcome you. How nice. Sadvika, right? Yes, Sarvika. Salvika. That's Salvika. क्या मीनिंग है साल्विका का? What is the meaning of साल्विका? क्या मतलब है आपके नाम का? Sarvika is actually means Sarvagun Sampurna, that is total complete. वाह क्या बात है. सर्वगुण संपूर्ण. So nice. Yes. Total complete. Yes. Thank you, sir. Thank That's you. How are wonderful. you doing, Wonderful. sir? I'm great. How are you doing? Good, good. So, guys, I'll give you all a brief introduction about Sir. I don't think he needs any introduction, but still. So, today we have with us Mr. Himanshu Malhotra, who's acted in TV shows, movies, and he's also been the proud winner of Nach Paliye Season 7. Yes. Yeah. He also has his very own YouTube channel called the Share and Grow Initiative, through which I'm sure he's touched the hearts of millions. So, Thank you. yeah. So, do you want to give any introduction about yourself? No, I'm good. I think this is good. Right. Introduction तो लोग ही देंगे. मैं अपने बारे में खुद क्या बताऊंगा? Okay. So, sir, we were thinking today's topic is about expectations, acceptance, and exceptions. So basically, it's about how people have expectations about others and themselves, how they are ready to accept themselves, and basically about that self-love, also called self-love. So, sir, what is your take on it? My take would be expect nothing in life and accept everything. Wow. So it's very simple. The moment you start accepting things in life, life gives you so many beautiful opportunities each day. लेकिन होता क्या ना साल्विका, हम लोग ना ऐसे ब्लिंकर्स लगा के जिंदगी में चलते हैं. जो चाहिए हमें वही चाहिए. हम चीजों को, हम पूरी जिंदगी को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि whatever we want is the supreme thing and बाकी सब चीजें बेमायने हैं. बट क्या होता है ना, जिंदगी अपने आप नई नई चीजें फेंकती रहती है in the form of new opportunities. But since we have these blinders and blinkers on, we can't see those opportunities. So I keep saying, the moment you say yes to life, life says yes to you. The problem is we say a lot of no. क्योंकि हमें हमारी जिंदगी अपने मुताबिक चाहिए. लेकिन जिंदगी किसी के मुताबिक चलती नहीं है. ये तो सबने देख ही लिया होगा. Life is meant to be unpredictable and that is the most beautiful part and magic of it. अगर मुझे सब पता हो कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, तरसों क्या होने वाला है, तो आप बताओ जिंदगी जीने का मजा ही क्या आएगा. Everything is so unpredictable. That's why you step out of your house because you don't know whether this will work or not work. अगर जाने से पहले ही पता होगा it will work or it will not work, तो शायद मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगा. So it's very important to accept life as it comes and make the best of it. अच्छा खिलाड़ी वो होता है. कभी ताश खेली है आपने? कार्ड्स खेले? साल्विका, तो ताश में अच्छा खिलाड़ी वो होता है जिसके पास जो मर्जी पत्ते आ जाए, चाहे बेकार से बेकार हो, लेकिन उसको खेलना और जीतना आना चाहिए उन बेकार पत्तों से भी. ना कि हर बारी आपके पास अच्छे, किसी खिलाड़ी के पास कभी भी किसी खिलाड़ी के पास हमेशा अच्छे पत्ते नहीं आते. But you must know how to play with those cards. What is given to you by God. So make the best of what God gives you. Accepting everything. Acceptance to what is also the key of happiness. So अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जितना प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, जितना जो जो चीजें ऊपर वाला दे रहा है, जैसे कोविड-19 ही है. अब शुरू में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बहुत रेजिस्ट किया था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया. जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप घर में बैठ भी जाते हो, कुछ कुकिंग करने की कोशिश करते हो, कुछ हाथ बटाने की कोशिश करते हो, कुछ रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो. वो सब तभी हो पाएगा वंस यू एक्सेप्ट इट कि अब ये हो गया है. अब मुझे बताओ क्या करना है जिंदगी में. जितना हम रेजिस्ट करते हैं ना जिंदगी में, उतना जिंदगी हमसे दूर चली जाती है. True. You make the most of it when you start accepting. So जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं और कंट्रोल फ्रीक है ना, उनको समझना जरूरी है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल से जिंदगी नहीं चलती. लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने जो कंट्रोल करने की कोशिश की थी ना कुदरत को, सब धरी की धरी रह गई है. सबके सब घर के अंदर बंद हैं. सो इससे बड़ा सबक नहीं हो सकता दुनिया के लिए कि the moment you start controlling the nature and the universe, it will never happen. Nature will throw its own balls. So the best thing is accept whatever God gives you and try to make the best out of it. And it's not difficult. It's more easy.
because then you're going with the flow of life and the nature and the universe supports you. So true. सर आपको तो नेचर ने एक बहुत अच्छा ऑफर दिया, मतलब of course it's because of your hard work and all, but winning the Nach Baliye title, it was such a beautiful thing, such a proud winner. So how did you feel about that? Can you repeat your question? I think I lost you because of the internet. The Nach Baliye title which you won, Nach Baliye season 7, it was such a beautiful achievement of yours. So how did you feel while getting it? कैसा था, मतलब जर्नी कैसा था? How was the feeling with Amruta ma'am, of course, the very beautiful Amruta ma'am. Yes, the very beautiful Amruta ma'am and the very entertaining Amruta ma'am and the very bindas and the very chilled out and the very musty for Amruta ma'am, whom I know since 16 years now. That's beautiful. So when you're dancing with your partner, you know, when you're dancing with your life partner, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता ना. It's like a fairy tale. You're on a platform and you've just gotten married और आपको लगता है पूरी दुनिया आपके डांस को देखेगी. इससे पहले हमने कभी साथ में कुछ किया नहीं है. So it's like a fairy tale. So for us, I think जीतने से ज्यादा ना आप उस प्लेटफॉर्म पे इसलिए जाते हो क्योंकि आपको परफॉर्म करना है. You're a performing artist. I'm an actor. She's an actor. So we love performing. और उसके बाद जब आप मेहनत करते हो, आपको शाबाशी मिलती है, वैलिडेशन मिलता है, लोग अप्रिसिएट करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं, और जब आप जीत जाते हो तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. But the most important thing is you need to enjoy those moments because they will never come back again. So I think our whole idea was once in a lifetime opportunity. It's a once in a lifetime opportunity because बाकी सारे reality shows में आप कभी करोगे या सोलो करोगे, but this is the only reality show in the country जहाँ आप अपने real life partner के साथ डांस करते हो and the whole world watches it. So इससे अच्छा कुछ नहीं है. I think this is the most best feeling. So we had the bestest of. Still have most beautiful memories of the show. I'm sure. And your performance was so then amazing. It's all the more cherry on the cake. Yeah. So sir, you had said a very beautiful line Nach Baliye के time about कैसे लोग ही नहीं रहेंगे तो गलतियों का क्या करेंगे. That touched my heart in a way nothing has ever. So I'm sure it might have touched a million other hearts. So sir, what was the thing behind it? आपको कहाँ से आया वो? So actually कुछ सोचा नहीं था. It's something क्या होता है ना, something God gives you here and it has to pass through you for everyone else for the transformation. So I had lost my dad 2 years back. You know, 2 years back in the sense 2013 2nd April को, और नच बली हुआ था 2015 में. I think अप्रैल या मई की बात है. तो हुआ क्या था, जजेस ने कुछ पूछा था मुझसे और ऑन द स्पॉट मैंने ये कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे. तो यहाँ चंद लम्हों में जिंदगियां गुजर जाती हैं तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं जिंदगी में. सो गलतियों को पकड़ के नहीं बैठते हैं जिंदगी में. ये मैंने बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर एंड आई रियलाइज्ड कि जब इंसान चला जाता है तो आप खामियां क्या ढूंढोगे उसके अंदर. सब इंसान ही खत्म हो गया वहां पर. यू कांट रिट्रीव दैट ह्यूमन बीइंग बैक. सो हम क्या करते हैं, जब तक उसकी कमियां देखते रहते हैं, खामियां देखते रहते हैं. जब इंसान चला जाता है तो याद करते हैं उसकी खूबियां. तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना. जब इंसान है तो उसकी खूबियां देखो, उसके साथ अच्छा वक्त बिताओ. फिर वो कब चला जाएगा पता थोड़ा लगता. उसकी गलतियों को ना पकड़ के नहीं रखते हैं. जितना पकड़ के रखेंगे ना उतना हम खुद को पकड़ लेते हैं और जिंदगी को पकड़ लेते हैं और रिश्ते फिर खराब और खत्म होने शुरू हो जाते हैं. सो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए. बट अगर कुछ हो गया किसी से, देखो गलतियां हर इंसान से होती हैं. आप भी परफेक्ट नहीं हो, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, कभी होगा भी नहीं. सो बेहतर यह है कि उसको वहीं छोड़ दो. और वो आप माफी भी इसलिए नहीं देते हो क्योंकि आपको उसको माफ करना है. माफी आप खुद के लिए देते हो क्योंकि आपको सुकून चाहिए. क्योंकि आप उस बात को याद कर करके परेशान हो रहे हो ना, तो उसको वहीं छोड़ दो, खत्म हो. और माफी के बारे में एक बात और है, लोग माफ इसलिए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो वेट करते रहते हैं सामने वाला कब माफी मांगेगा. तो ये मैं सबको कहना चाहूंगा, ये इंतजार मत करो. अगर सोचो मेरी बात सालवी का, अगर पूरी दुनिया सिर्फ यही सोचती रहती कि वो मुझसे कब माफी मांगेगा, वो कब मांगेगा, ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर यही सोचते रहते कि कब माफी मांगेंगे, नहीं करते, तो दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन बर्न टू एशेस बाय नाउ. करेक्ट, सो ट्रू. क्योंकि लाखों करोड़ों लोग रोज गलतियां कर रहे हैं.
तो अब मैं यही कहता रहूं या यही सोचता रहूं कि ये मुझसे माफी मांग, ऐसे तो द वर्ल्ड विल, मैं माफ नहीं करूंगा तो इधर आई विल क्रिएट पॉइजन इन माई माइंड एंड हार्ट, एंड ऑल्सो द वर्ल्ड विल बर्न टू एशेस बिकॉज पीपल विल Yes. स्टार्ट हेटिंग ईच अदर. सो यू जस्ट फॉरगिव, यू फॉरगेट, खत्म वहीं पर ही. छोटे थोड़ी हो जाएंगे सॉरी बोलने से। ना सॉरी बोलने से, ना किसी को माफ करने से, जिंदगी में खुद के लिए करते हो. सॉरी आप इसलिए बोलते हो क्योंकि आपको लगता है आपने किसी का दिल दुखाया जाने अनजाने में, और आप अपनी गिल्ट से बाहर आना चाहते हो, तो आप माफी मांग लेते हो ताकि बात खत्म हो जाए. और आप माफ इसलिए करते हो क्योंकि आपको अपना सुकून भी तो चाहिए ना, वरना वो पॉइजन आपके अंदर बार बार सोच के कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने वैसा किया. मैं एक बताता हूँ सबको, आ जाता है बड़ी अपने अच्छी आपको बात है, अंदर से। अगर जो लोग सुन रहे हैं अगर ऐसे कुछ करना चाहें तो, कि रोज रात को ना हाथ जोड़ के ऊपर वाले से कहें कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, आंख बंद करके मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, भगवान से कहें. और अगर किसी ने जाने अनजाने में मुझे हर्ट कर दिया है तो आप, सो हम गॉड से प्रे करते हैं कि मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दो, अगर किसी से गलती हो गई, किसी ने जाने अनजाने में मुझे बैक स्टैप कर दिया, हर्ट कर दिया, तो उसे भी माफ कर दो, ताकि हम आगे बढ़ते चले जाएं, हम कुछ सोचे ना जिंदगी में. So true. Makes you feel so light from inside. That's the point. The moment you are light, then only you can move forward. ना इतना 50 किलो का बोझा लेके कभी आप जिंदगी में भाग आगे नहीं सकते हो? बढ़ पाएंगे। हाँ, तो ये दिमाग पे 50-50 किलो के जो बोझे अटके पड़े उसको छोड़ देना जरूरी है. बहुत सही सर. So sir, you've spoken about such beautiful topics in your YouTube channel, which is the Share and Grow initiative. Yes. So I'm sure many people out there have learned so much from you. So what was the thought behind it? How did you start? What was the motive to start this? मोटिव, मोटिव तो नहीं कहूंगा, मोटिव बहुत छोटा शब्द है. आई थिंक इट्स द पर्पस ऑफ लाइफ. Purpose. हाँ, सो क्या होता है ना, कभी कभी ऊपर वाला आपको कुछ सीख दे देता है, कुछ समझ दे देता है जिंदगी की, और आप मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजों को देखना शुरू कर देते हो फ्रॉम अ डिटैच्ड पॉइंट ऑफ व्यू. अदरवाइज सब एक ही रेस में भाग रहे हैं. फॉर्चुनेटली मैंने कभी किसी रेस का हिस्सा बना नहीं हूं मैं जिंदगी में. I've never compared myself to anybody else. Never have I felt jealous. Never have I felt insecure, because I always feel God has given you something unique. आप उसकी कदर करो. जब आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हो तो आप अपने हुनर की तौहीन करते हो. So since I've never compared, so you start learning so many things. I've always been a student of life. So I thought अब मेरे अंदर बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, बहुत सारी चीजें समझ ली हैं, लेकिन और सीखने के लिए और समझने के लिए अपने प्याले को खाली करना पड़ता है. यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू हैव टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेट इट फ्लो थ्रू यू so that you also keep learning more. So that's what I decided. Let's not restrict myself only to film fraternity. It's been 15-16 years. My life also needs bigger meaning to it. So I started connecting with so many people from various fraternities, whether it's corporates, whether it's Mrs. India, whether it's school, colleges, institute, children, kids everywhere, older people, parents. And let's start sharing. Let's start sharing what we can understand from your point of view and what we can understand from my point of view, and we can learn and unlearn each other, that way. So इसलिए इसकी एक लाइन भी हमारी ये थी शेयर एंड ग्रो की जब शुरू किया था. That is why it was also formed on Teachers' Day. That was 5th September 2016, and we officially launched on Children's Day. That is 14th November 2016, because the process is learning and unlearning together. So हमने एक लाइन रखी थी स्टार्टिंग में शेयर एंड ग्रो की, कि बातों बातों में कोई ऐसी बात निकल जाए जो बात आपके जहन को टच कर जाए, जो आपकी आत्मा को छू जाए, और जिससे आप जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ जाए. सो कोई लेक्चर्स नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है. इट्स जस्ट समथिंग विच इज हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इज व्हाट वी लुक फॉरवर्ड टू. Wow, that's beautiful, sir. As it was launched thought of it on Teachers' Day, so sir, happy Guru Purnima to you. Thank you. Because I Thank you. definitely have learned a lot from you, sir. Thank you. That's very very kind of you. Happy Guru Purnima to you as well. मैंने अपने सारे गुरुओं को आज विश कि आपकी वजह से मैं हूँ, और जितना भी मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है. एक तो जिंदगी बहुत बड़ी गुरु है, जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, इफ यू कीप लर्निंग फ्रॉम इट, बिकॉज गॉड कीप सेंडिंग साइंस. बहुत कम लोग हैं जो इन साइंस को समझ सकते हैं और थोड़ा सा अवेयर होकर उससे सीख सकते हैं. मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी की हर घटना आपको कुछ सिखाने के लिए है, आपको सीखना आना चाहिए बस. जो सीख जाता है वो आगे बढ़ जाता है. जो That's very true, sir. Very true. है तो मेरे सभी गुरु
है और सबको थैंक यू है फॉर इट्स बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स एंड इट्स बिकॉज ऑफ देयर गाइडेंस दैट आई स्टैंड टुडे एंड जितना भी मैं बोल पाता हूँ समझ पाता हूँ जिंदगी को, आई थिंक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है. Yeah, that's very true, sir. You Sir, sir, getting back have to a today's wonderful topic. smile. Thank you Keep so much. smiling, keep smiling. That's a beautiful smile. Thank So, sir, getting back to today's topic, Hmm. today's generation is highly influenced by social media. Hmm. And we do feel like if they dress up in a certain way, look a certain way, or behave in a certain way, only then will they be, likable, or the people will accept them. So, what is your take on that? क्या हो गया है सबको, मैं जानना चाह रहा हूँ. क्यों वैलिडेशन ढूंढ रहे हो वर्चुअल लोगों से? एक ऐसी वैलिडेशन जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है. एनोनिमस आईडी के पीछे कितने सारे लोग कुछ भी बोल देते हैं. एनोनिमस आईडी के पीछे कितने लोग तारीफ कर देते हैं. हो क्या रहा ना, इस तारीफ से हमें प्यार हो गया है. ये तारीफ झूठी है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है. और वैसे भी तारीफ के शब्दों का अपना अस्तित्व नहीं होता. पता कैसे होता है? क्या इज्जत जो हम कहते हैं ना जिंदगी में, वो भी दो मुखी होती है. दो मुखी मतलब अगर आप मेरी इज्जत करते हो तो आप अपनी नजरों में इज्जत करते हो, राइट? तो मैंने कुछ अच्छा किया आपके लिए, तब आप इज्जत करोगे ना. जिस दिन कहीं जाने अनजाने में मुझसे कुछ गलत हो जाएगा तो इज्जत भी ऊपर से नीचे आ जाएगी. तो जब मेरी इज्जत आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी तो मेरा अपना अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा. इसलिए ये इज्जत भी खोखली होती है. सिचुएशनल हो जाता है इज्जत देना. हाँ, तो ये खोखली होती है बेसिकली. इज्जत का अपना कोई डिनोमिनेटर नहीं होता. ऐसे ही वैलिडेशन का अपना कोई डिनोमिनेटर नहीं होता. अगर आप सिर्फ जिंदगी में यही ढूंढते रहोगे कितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कितने लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप हमेशा भटकते रहोगे. प्रॉब्लम क्या है आज की जनरेशन के जितने लोग सुन रहे हैं, सुनिए जरा. आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप दूसरों से एक्सेप्टेंस मांग रहे हैं. जब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं जैसा हूं सही हूं, हाँ जिंदगी में इंप्रूवमेंट बाकी है, मैं खुद को इंप्रूव करता चला जाता हूं, अपना कर्म करता हूं, मेरा काम है. सोशल मीडिया इज लाइक अ प्लेटफॉर्म टू पोर्ट्रे योर टैलेंट. इट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू आस्क. The moment you start asking for validation, the moment you start attaching yourself too much to those likes and views, because you start comparing your likes and views with someone, और आपको लगता है कि उसके लाइक्स एंड व्यूज ज्यादा हैं तो उसको ज्यादा अटेंशन मिलती है, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, उसको ये मिलता है, उसको वो मिलता है. ये सब बेकार की तकियों सी बातें हैं, लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है. असलियत में जब आप परेशान होते हो, जब आप सैड होते हैं, जब आप ग्रीफ में होते हो, देखो क्या होता है ना, जब मैं फोटो खिंचवाता हूँ ना तो मैं भी मुस्कुराता हूँ, चाहे जितना मर्जी सैड क्यों ना हो. तो हर कोई जो फोटोएं खिंचवा रहा है ना यहाँ सोशल मीडिया पे, हर कोई अपने आप को खुश दिखा रहा है. खुश है या नहीं है ये पता नहीं है किसी को. तो इस बात की गहराई को समझना जरूरी है, क्योंकि हम भी जब फोटो खिंचवाएंगे तो खुशी देखेंगे, हम रोते रहो तो फोटो नहीं खिंचवाएंगे. तो आप ये भी समझो कि दूसरा भी हो सकता है किसी बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरा हो, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए अपने आप को अच्छा दिखा रहा है. तो उसके सच से वाकिफ होना बड़ा जरूरी है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम कंपेयर बहुत कर रहे हैं खुद को. क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम खुद को ना इनएडिक्वेट महसूस करते हैं. हमें लगता है कि हम कम हैं दूसरे से. अगर आप इस बात को समझ जाओ कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, यू आर द एपिसेंटर ऑफ द यूनिवर्स. क्योंकि अभी भी इस मोमेंट पे एज वी आर स्पीकिंग लाखों करोड़ों चीजें हमारे शरीर के अंदर चल रही हैं जो आपके बिना चल रही हैं. आप चला नहीं रहे, आपका दिमाग नहीं चला रहा. सबसे बड़ी बात तो ब्रेथ है. अगर एक सेकंड के लिए सांसें रुक गई तो सारा खेल यहीं कहीं खत्म हो जाएगा एक सेकंड में. जितने भी आपके प्लान्स हैं ना, ड्रीम्स एंड गोल्स एंड डिजायर्स हैं, एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे यहीं पर. कोई भी याद भी नहीं रखेगा आपको. 5 मिनट के लिए लोग रोएंगे, 2 घंटे के लिए रोएंगे, उसके बाद खाना भी खाएंगे और सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ भी हो जाएंगे अगले दिन. तो बड़ा जरूरी है इस बात को समझना कि अपने आप को बार बार कंपेयर करके दूसरे से अपने टैलेंट की तौहीन मत करो. अपने अंदर जो एक यूनिकनेस है उसको फाइंड करो. सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल करो, इट्स अ प्लेटफॉर्म टू पोर्ट्रे योर टैलेंट. आप अपना टैलेंट पोर्ट्रे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ. एक वक्त आएगा जब कहीं ना कहीं लोग उस टैलेंट से जुड़ जाएंगे और वो लोग आपको फिर आगे बढ़ाना शुरू करेंगे. True, sir. That you are enough. We have to understand that we are enough. We don't need anyone's validation. Yes, we were always enough. You never need, nobody needs validation. क्या हमारे मॉम डैड को कभी किसी से वैलिडेशन चाहिए होती थी? और वो भी ऐसे लोगों से जो अनोनिमस है सालवे का.
हमें पता नहीं Yeah. इनका अस्तित्व क्या है। हजारों लाखों ईमेल आईडी बन सकते हैं और बनाए भी जाते हैं। जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ वहां तो बहुत सारी चीजें, लाइक्स और व्यूज बहुत मैनिपुलेटेड हैं। इसके इतने ज्यादा हैं, उसके इतने कम है, मेरे बढ़ा दो, हैकर को बुलाओ, ये करो वो करो, ऐसा बहुत कुछ होता है। बहुत सारे लोग देखो, बहुत सारे जब जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं, लोग बहुत सारे तिकड़म लड़ाते हैं, बहुत सारी चीज जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं कंपैरिजन के चक्कर में, लेकिन होगा कुछ नहीं। अल्टीमेटली हो, खत्म हो जाओगे। So do not attach yourself too much to social media. It's not going to help you. आप इससे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म लें। अगर अगर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो फिर एक चीज ध्यान रखें कि 1 साल तक अगर कोई कर सकता है तो मुझे बताना, क्योंकि हमने किया है। 1 साल तक अगर किसी में हिम्मत है तो सिर्फ पोस्ट डाल के भूल के देखें, मतलब पोस्ट डाल दो और भूल जाओ। Don't go and check कि कितने likes आए, So कितने you comments just आए. keep posting. You just keep posting what you want to do. Post your talent. Keep posting. Keep posting. Keep posting. It's called रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। जब आप रोज कोई काम करना शुरू करते हो, हम 3 साल से शेयरिंग ग्रुप, वी आर रनिंग शेयरिंग ग्रुप इनिशिएटिव। हमारे कितने वीडियोस रोज जा रहे हैं, कभी किसी ने ध्यान में नहीं दिया कितने व्यूज आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं। बस हमारा काम है सिर्फ डालना ताकि लोगों तक पहुंचे। उसके बाद वो कहां से कहां पहुंचेगा ये मुझे भी नहीं पता। जिस लाइन की आप बात कर रहे थे ना, जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करेंगे, वो लाइन मैंने बोली थी लेकिन रिकॉर्ड किसी और ने की। Oh. ठीक है, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं डाली, वो कहीं से रिकॉर्ड हुई कि कहीं तक पहुंचनी थी, अपने आप लोगों तक पहुंचती थी। वो लाइन है 2015 की। 2015 में वो लाइन मैंने बोली, 2019 में टिकटॉक पे वो वायरल होनी शुरू हुई, जबकि मैंने नहीं डाली अपने इंस्टाग्राम पे। जब मैंने मेरा तो टिकटॉक अकाउंट भी नहीं था। तो होता क्या है, जो चीज जहां तक पहुंचनी होती है ना वो पहुंच जाती है। आप सिर्फ अपना काम करो, आप बेकार की चीजों में मत उलझो, वरना फंस जाओगे, वरना दुनिया और भी ज्यादा फंसा देगी। सच में we shouldn't look for validation, sir. आजकल के जनरेशन में, इंक्लूडिंग मी, नॉट इवन अदर्स, we're so into this ना कि लोग क्या सोचेंगे, ये अच्छा लग रहा है, ये फोटो मुझे अच्छा लगा है, उनको अच्छा लगेगा। टू मच हो जाता है वो, सर. It कंज्यूम्स इट. क्या है ये बेसिकली, क्या साल्विका, अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसने वाली बात है। इट्स अ बबल ऑफ इल्यूजन, यू आर क्रिएटिंग दैट बबल। किसी के जाने के बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताओ, जो आप लोग सोचेंगे ये करेंगे वो करेंगे। जब इंसान गुजर जाता है जिंदगी में, जब इंसान की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद अगले दिन, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने देखा है अपनी नजरों से, लोग अगले दिन खाना खाते हैं। करेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि लोग खाना नहीं खाते। लोग खाना खाते हैं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। वो कौन से 4 लोग हैं, कौन से लोगों की परवाह कर रहे हो आप जिंदगी में, जिन लोगों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। करेक्ट. तो आप गलत फहमी में जी रहे हो, उन लोगों की परवाह करके आप अपनी जिंदगी को रोक रहे हो कि उसको क्या पसंद आएगा। मेरी एक को स्टार थी, सो उसके साथ ऐसा होता था, वो फोटो डालने से पहले 2 घंटे कैप्शन सोचती थी। तो आई वाज टॉक शो विद हर एंड आई टोल्ड हर, आई सेड लिसन, I won't name her. I said, listen, just be you. जो पहला थॉट आता है दिमाग में उस कैप्शन को लिखने का, बस लिख दो। क्योंकि आप ये, या तो आप इसलिए लिख रहे हो, या तो आप इसलिए फोटो डाल रहे हो कि मुझे बस लाइक्स और व्यूज बटोरने हैं ताकि मैं पॉपुलर हो जाऊं। ये कोई तरीका नहीं है, इससे कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया ही ये कर रही है। जब पूरी दुनिया ये कर रही है और आप भी ये करो, तो आप में और लोगों में फर्क क्या है? फिर तो घोड़ों की चाल पे चल रहे हैं। अगर खुद को दुनिया से अलग करना है, देखो एक रास्ता है जहाँ सब चल रहे हैं, जहाँ इतना सैचुरेशन है, स्ट्रेस का भी यही कारण है, क्योंकि सबके सब एक ही रास्ते पे बिना देखे बिना सोचे चले जा रहे हैं। और एक रास्ता है जहाँ पे कोई चल नहीं रहा। रास्ता है, लोगों को दिख भी रहा है, लेकिन चलना नहीं चाह रहे, क्योंकि पूरी दुनिया वहां भाग रही है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, भीड़ जो होती है ना, भीड़ चाल, भीड़ साहस देती है लेकिन अपनी पहचान छीन लेती है। तो अपनी पहचान बनानी, तो अपना रास्ता हमेशा अलग होना चाहिए। तो मैंने उसको कहा था, इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, जस्ट राइट व्हाटएवर द फर्स्ट थॉट कम्स टू योर माइंड, बिकॉज़ दैट इज योर मोस्ट ओरिजिनल थॉट एंड दैट इज द मोस्ट प्योरेस्ट इंस्टिंक्ट। मैंने एक फोटो डाली है अभी कुछ दिनों के बाद, वैसे तो टीम ही हैंडल करती है। सो माय मदर इन लॉ मेड दाल मखनी एंड पनीर। सो माय कैप्शन इज दाल मखनी लंच टाइम एंड फॉर पंजाबी बॉय हैप्पी। इतना सही है बस, कि आज का दिन दाल मखनी के लिए बस। अब इस सिंपल साइंटिफिकली या फिलोसफिकली या क्या डालूंगा, कि ये है वो है, सब बेकार है।
जो सच है ना बस वो लिखो, जो महसूस होता है वो लिखो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ या हम सेशंस भी करते हैं, जो शेयर एंड ग्रो के हमारे सैग लर्निंग सेशंस हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, किसी से भी कभी भी पूछ लेना, या इतना हमने 3 साल में जहाँ पे भी सेशंस किए हैं, कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं होता जिंदगी में किसी भी चीज का, कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड्स नहीं चल रही हैं। जो बात दिल से निकल रही है वो दिल तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। उसके लिए क्या मुझे चीखने चिल्लाने की जरूरत है? मुझे सिर्फ अपनी बात आपसे कहनी है, जो दिल से निकली गई बात होगी ना वो आपके दिल तक अपने आप पहुंच जाएगी। तो अगर जो थॉट मैंने पहला आया और मैंने लिख दिया इंस्टिंक्टिवली, वो जिसको अटैच करना होगा वो अपने आप कर लेगा। जिसको लगेगा हाँ यार ये बड़ी सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, और जितना हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं ना उतना दिमाग सिंप्लीफाई हो जाता है। जितना दिमाग सिंप्लीफाई होगा हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे एस्पिरेशन तक हम जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि बाकी क्लस्टर्ड नहीं है सब चीजें। अब मेरे पीछे अगर लाखों करोड़ों चीजें हो तो डिस्ट्रैक्शन होगी ना, लेकिन पीछे प्लेन वॉल है, दीवार, इसका मतलब माइंड अनक्लटर्ड है। सेम गोज फॉर द हाउस। हाउस भी क्लीन रखते हैं तो जरा इजी लगता है। जितना आप क्लीनिंग बड़ी जरूरी है घर के, छोटी सी बात है, लेकिन बर्तन मांजो अगर मान सकते हो तो, क्योंकि अगर मांजोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि बर्तन धोने में क्या एक सुकून होता है उसके अंदर भी, क्योंकि वो जब पानी के अंदर हाथ डालते हो, जब बर्तन, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट, लंच के बाद आई क्लीन इट, तो जब आप क्लीन करते हो ना, एक तो हाथों को कुछ महसूस होता है, माइंड को महसूस होता है, क्लटर जो यहाँ पर है ना, इट्स लाइक क्लेंजिंग योर माइंड एंड स्लोली एंड स्टेडली। इट इज अ फिजिकल एफर्ट बट इट ऑल्सो हैज एन इम्पैक्ट हियर। द मोर messed up you are in your surroundings, the more messed up you will be in your head. The more cleaner you are and minimalistic you are in your surroundings, the more you will have your brain and your mind and your heart working absolutely towards your goal. Because then you're centered and balanced. Buddha ko dekha na? Lord Buddha, be centered and be balanced. That's what we need to aim for. So talking about aims and goals, so there are people who, I don't know, they find something which others do and they make that their goal. कि वो अच्छा लगता है वो, not necessary it is what they खुद से चाहते हैं, just because everyone is doing तो वो लोग उसको अपना गोल बना देंगे, and then they don't achieve it and then they're back to basic, I can't do anything. कभी नहीं। जब आप दूसरे की देखा देखी जिंदगी में कर्म करोगे तो ऊपर वाला कहेगा बेटा वाह, मैंने तेरे को क्या दिया था टैलेंट और तू क्या कर रहा है। मैंने तेरे को टैलेंट दिया था X हाइपोथेटिकली, और तू Y टैलेंट खोज रहा है अपने अंदर और उसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि Y में ही सक्सेसफुल है, लेकिन X टैलेंट भी सक्सेसफुल हो सकता है। शायद रास्ता डिफिकल्ट है, लेकिन हो सकता है वहां पे कोई हो ही ना। वहां पे आप मोनोपोली क्रिएट कर दो, वहां पे आप दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ, या वहां पे आप दुनिया के सुपरस्टार बन जाओ, या एक्टर बन जाओ, या परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बन जाओ। हर इंसान को खुद बनाना चाहिए। जो दूसरे का रास्ता फॉलो करेगा ना, वहां पे सिर्फ साल्व का मुंह की खाओगे आप। अपना रास्ता खुद बनाओ। अपना रास्ता जो बनाता है, आज आयुष्मान खुराना ने अपना रास्ता खुद बनाया है, अपनी फिल्में अलग तरीके से चूज करता है। राजकुमार राव का अपना रास्ता है, वरुण धवन का अपना रास्ता है। हर कोई अपना अपना रास्ता बना रहा है। अगर हर कोई एक दूसरे के बीच में घुस जाएगा, आयुष्मान कहेगा वाओ लेट्स डू, मैं भी काम करता हूँ, सॉन्ग एंड डांस करता हूँ, ट्रीज के पीछे घूमता हूँ, सिक्स पैक्स दिखाता हूँ, बट इट डजंट वर्क फॉर हिम, राइट। राजकुमार राव के लिए कुछ अलग रास्ता है। हर कोई अपना अपना रास्ता बनाता है। अपना रास्ता ही सर्वोपरि है। सर्वगुण संपन्न अपना रास्ता है जो आपके नाम से तय होता है। तो अपना रास्ता खोजो। थोड़ा समय लगेगा खोजने में, लेकिन अंदर झांक के देखो, अपने साथ थोड़ा समय बिताओ, थोड़ा वक्त बिताओ। नहीं तो सेशंस में आओ हमारे, हम पुश कर करके क्या कोशिश करेंगे कि आप अपना रास्ता खोज लें। So, जिसको भी आना है, they can join our sessions. I urge everyone to join. So either watch his YouTube channel, the Share and Grow Initiative, or he does 60-minute sessions. It'll be amazing, guys. You all should. That would be helpful because क्या होता है, देखो आज गुरु पूर्णिमा इसलिए कह देता हूँ, कहीं मैंने बड़ी प्यारी बात पढ़ी थी। एक चींटी को अगर मुंबई से पुणे जाना हो तो शायद उसको जिंदगी लग जाएगी मुंबई से पुणे जाने में, करेक्ट? लेकिन अगर वही चींटी किसी इंसान के कंधे पर बैठ जाए और वो इंसान ट्रेन से मुंबई से पुणे जा रहा हो तो वो 2 घंटे में पुणे पहुंच सकती है। तो मतलब क्या हुआ, अगर आप सही इंसान की दिशा के साथ हो, जो इंसान आपको दिशा दिखा रहा है, अगर आप उसके साथ हो
और कहीं ना कहीं आप उसके साथ जुड़ जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते आसान हो जाते हैं ना जिंदगी में। अगर वो चींटी एक ऐसे इंसान के साथ जो पुणे जा रहा है उसके कंधे पे बैठ जाती है, तो वो सो भी जाएगी तो भी अपने रास्ते पे पहुंच जाएगी, उसको मेहनत हम्म। करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जिंदगी में ना हुनर बहुत जरूरी है, टैलेंट, बट टैलेंट विदाउट गाइडेंस इज एब्सोल्युटली नथिंग। क्योंकि So मैंने अपनी जिंदगी में जितना मर्जी हुनर हो, लेकिन अगर सही दिशा नहीं है, सही मार्गदर्शिता नहीं है, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप बिखर जाते हो फिर। क्योंकि दुनिया आपको सिर्फ बिखेरने के लिए है, कोई संभालने के लिए नहीं है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट गाइडेंस। वो राइट गाइडेंस ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे से मिलेगी, कहीं से भी मिल सकती है। आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई, आपकी बहन, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, कोई भी। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन सीखते रहना बड़ा जरूरी है। true, sir. So, talking of guidance, who was your guidance, your pathway? Who showed you the path in life? So, not specifically anyone has shown, to be very honest. It's just because I think I have a great zest to learn from life. So, जितने भी लोग मेरी जिंदगी में आते रहे, चाहे वो गर्लफ्रेंड बन के आई या कोई और इंसान बन के आया या दोस्त बन के आया या आई, मैंने हर घटना से कुछ सीखने की कोशिश की, हर एक्सपीरियंस से, कि यार ये इंसान आया तो इसका कुछ मकसद था, ये कुछ पूरा करके फिर चला गया, इसका इतना ही लिखा था। हम अक्सर अटक जाते हैं कि वो मुझे छोड़ के कोई चला गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, अब मैं डिप्रेशन में हूँ। अब वो इंसान आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, उसका साथ उतना ही था, आपने सीखा कि नहीं सीखा। जैसे मैंने फर्स्ट रिलेशनशिप से सीखा था, होता कि फर्स्ट रिलेशनशिप में बहुत पोजेसिव हो जाते हो। पहला प्यार होता है, स्कूल की बात है, 11th स्टैंडर्ड की। तो मैं, मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड, हम तीनों साथ में घूमते थे। उस समय का दौर ऐसा था कि साथ में घूमने जाना, साथ में डेटिंग होती थी। फिर कुछ महीने के बाद आपको ना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, आपको लगता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा क्यों नहीं हूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड क्यों साथ में टैग अलोंग हो रहा है। स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में थोड़ी परेशानी हो जाती है। यस, यू स्टार्ट गेटिंग पोजेसिव अबाउट दैट पर्सन। और क्या हुआ, धीरे धीरे वो पोजेसिवनेस इतनी बढ़ जाती है कि आपका ना रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। यू स्टार्ट थोड़ा धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाते हो, बिकॉज आप बेस्ट फ्रेंड को बोलते हो, उसको बुरा लगता है, वो दूर हो जाता है। गर्लफ्रेंड को बोलते हो, उसको बुरा लगता है, वो दूर हो जाती है। और धीरे धीरे वो जो खुशी थी ना, जो तीनों के साथ में थी ना, वो कम हो जाती है। फिर आपको एहसास होता है कि गड़बड़ हो गई है जिंदगी में। सो इस बात को समझना मैंने उस समय 11th 12th स्टैंडर्ड में समझ लिया था। आई वाज इन दिल्ली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्या पोजेसिव not important, the person is important. Because if the person leaves, मैं उस possessiveness का क्या करूंगा? If my girlfriend leaves tomorrow, तो मैं possessiveness तो उस इंसान के लिए ना, वही चली जाएगी तो फिर खत्म हो जाएगी ना कहानी। तो ऐसे जिंदगी के सबक आप सीखते रहते हो, तो जिंदगी आपको सिखाती रहती है। And then obviously all this while so many, my acting teachers, my cricket coach, I was a cricketer before, then some producers, some directors, जिंदगी से जो जिसने आया, मदद की, और कुछ लोग साथ में रुके हैं, कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं। मेरे एक्टिंग टीचर एक रुपेश सर हैं, जो बहुत सालों से साथ में, ही कीप्स हेल्पिंग मी आउट विद लाइफ एज वेल। उनके साथ 15 साल से हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जो आते रहते हैं। एंड सिंगिंग टीचर, जिनके साथ मैंने म्यूजिक सीखा, सिंगिंग सीखी, क्लासिकल सिंगिंग सीखी, वॉइस सीखा। हाँ, so then I think it really helps to grow, and I keep growing. I think that's very important. सबसे कुछ ना कुछ सीख ही लिया। जरूरी है ना, जिंदगी में बिना सीखे कुछ होगा नहीं। बासी पानी, एक पानी देखो, एक पानी होता है जो बहता रहता है नहर में, और एक पानी होता है जो अटक जाता है और रुक जाता है, वो गंदा पानी होता है ना। गटर का पानी क्या होता है, जो रुका हुआ होता है, उसमें गंदगी बदबू भी आती है। लेकिन एक नहर का पानी जो हमेशा फ्लो करता रहता है, तो हमेशा साफ ही रहता है। yes. और वो आगे बढ़ता रहता है। तो बनना है तो नहर के पानी की तरह बनो, एवर इवॉल्विंग, एवर मूविंग। Evolving, yes, definitely. So talking about evolving, sometimes people face rejection, and they think they've stopped evolving, they've stopped achieving what they want. Rejection in the form of anything, can be girlfriend छोड़ के गई, या if you're trying for something and नहीं हो पाया, या anyway. So rejection is always considered as a setback. So what is your take on that? How do you face it? देखो, जिंदगी में मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ना, सबसे ज्यादा रिजेक्शंस यहीं पर हैं। इट्स अ वॉलेटाइल प्रोफेशन। आज आपका शो हिट है तो आपको पहली, या आपका शो या आपकी फिल्म हिट होती है तो आपको अवार्ड फंक्शन की पहली सीट मिल जाती है। कल आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो आपको कोई पूछता भी नहीं है, आप वहां खड़े रह जाते हैं, लेकिन कोई फोटोग्राफर क्लिक नहीं करता, आपको कोई होस्ट आके पूछता नहीं है। आपको एंड की पिछली 7वीं 8वीं 9वीं रो में कहीं बैठने के लिए कह दिया जाता है,
और कोई आपको ध्यान में नहीं देता, तो इससे बड़ा रिजेक्शन तो नहीं होगा ना। करेक्ट तो करेक्ट बड़ा जरूरी है इस बात को समझना कि रिजेक्शंस अगर कोई दे रहा है, कहीं से हो रहा है, तो या तो आप कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, या आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हैं ईगो के चक्कर में। A lot of times rejections or any kind of failing is just a detour. In the sense, शायद ऊपर वाला ये भी कहना चाह रहा है कि बेटा रास्ता कुछ अलग है, आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, थोड़ा ध्यान दो चीजों को। और रिजेक्शन तो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। जब तक संघर्ष है ना, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष रहेगा, ये अमिताभ बच्चन जी कहते हैं। तो ये तो होता ही रहेगा, जब तक जीवन है, जब तक आखिरी सांस है, संघर्ष चलता ही रहेगा। लाइफ वॉज नेवर मेंट टू बी इजी। जितनी जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना ईजी हो जाती है फिर। Because you know, coin always has two sides, heads and tail. Life is always have two sides. It's like a cyclical circle. Sometimes you'll go up, sometimes you'll go down. Sometimes you'll go up, sometimes. जो ऊपर जाएगा वही नीचे गिरेगा ना, जो नीचे गिरा हुआ है वो और क्या नीचे गिरेगा। No highs without lows, sir. So you don't, so इतना ज्यादा जैसे मैंने इज्जत की भी बात की थी, तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी कि ना अपमान का भय और ना सम्मान का मोह। तो ना सम्मान का मोह होना चाहिए और ना अपमान का भय होना चाहिए। मतलब आप अपमान का भय मतलब डर नहीं होना चाहिए इंसल्ट का, और सम्मान मतलब आपका सत्कार या अप्रिसिएशन का मोह नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट गेट अटैच्ड टू इट। सो यू हैव टू स्टे बैलेंस्ड कि जो चीजें हो रही हैं होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक चीज गड़बड़ हो गई तो दूसरी ट्राई करो, दूसरी गड़बड़ हो गई तो तीसरी ट्राई करो। और आप लोगों की उम्र में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो कीप डिस्कवरिंग योरसेल्फ। अभी तो बहुत कुछ करो, जितना कुछ करोगे उतना एक्सपीरियंस हासिल करेगा। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करने का नाम है और कुछ नहीं है। ये कोई रेस नहीं है। अगर यहाँ पे जो सुन रहे हैं लग रहा हो कि कोई रेस है तो आप गलत फहमी में है। जिंदगी कोई रेस नहीं है। लाइफ इज एन इनफाइनाइट गेम। ये रेस तब खत्म होगी जब आप जिंदगी छोड़ के चले जाएंगे, जब आपकी सांसें बंद हो जाएगी, तब आप इस ग्राउंड से बाहर जाते हैं। वरना तब तक आप इस ग्राउंड पे टिके हुए हैं। आप बॉल आते रहे, कुछ मिस हो जाएंगे, किसी पे आउट हो जाओगे, किसी पे चौका लग जाएगा, किसी पे छक्का लग जाएगा। दिस विल कीप हैपनिंग। सो यू जस्ट कीप मूविंग। आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो। जितने भी लेजेंड्स हुए ना जिंदगी में, whether it's Sachin Tendulkar, Virat Kohli, MS Dhoni, Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, everyone has a very strong habit of learning. They keep learning and then keep moving forward. They do not attach those rejections to their heart so much. ऐसा नहीं कि गलती हो गई तो आप बैठ ही गए, सब चीजें सोच के कमरे में बंद करके हो गया। एक इंसान आया, उसने प्यार किया, वो छोड़ के चला गया, खत्म हो गया। अब इसमें उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, सब बेकार है, क्योंकि इन सवालों के जवाब कभी मिलेंगे नहीं। तो इन सवालों के जवाब ढूंढो मत। ये देखो कि अच्छा वो आया था, उससे उसमें क्या अच्छा था, और उसने अगर कुछ गलत किया तो उससे मैंने क्या सीखा। अब आगे बढ़ने का टाइम है, क्योंकि आप उससे पहले भी खुश थे और उसके बाद भी खुश रह सकते हो, ये गारंटेड है। करेक्ट। किसी और पे अपना खुशी, we shouldn't be dependent for our happiness on someone else. Absolutely right. It's very, very important. It's true, sir. So, sir, is there any one thought or any one thing that keeps you going when, or you have something for the audience which you can say, कि when we face rejection or a setback, any one thing that we should keep in mind? Any one thing, जब भी rejections जब भी रिजेक्शंस बहुत ज्यादा लगे हैं जिंदगी के अंदर, और बहुत ज्यादा टूट जाओ और बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, तो किसी ने कहीं मैंने पढ़ा था, इवन द डार्केस्ट आवर इन लाइफ ऑल्सो हैज ओनली 60 मिनट्स। हमें लगता है कि वो 60 मिनट्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम दिमाग में बहुत इल्यूजन बना लेते हैं। हमें लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, बट नो, इवन द डार्केस्ट आवर ऑल्सो हैज ओनली 60 मिनट्स। दिस टू शैल पास। This too shall pass. Just don't get too deep into it. This will pass. It is meant to pass. Life is cyclical, Salvika. It is going to happen like this. Nothing is permanent. This situation, Heartbeat goes up and down, up and down. It is going to happen. Definitely. This situation will also pass. Yeah, current situation. Hrithik Roshan became the superstar of the country in the first film. 3 films flopped, and then on Filmfare cover it was written Hrithik Roshan finished. जब लोग ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन ऐसे लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। सो इतना ज्यादा ना इन सब चीजों से लगाव नहीं रखना चाहिए। आपका काम है सिर्फ कर्म करना। यू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ वर्किंग। रिजल्ट क्या होगा ना, हम प्रॉब्लम क्या है आजकल की जनरेशन की, रिजल्ट बहुत ज्यादा चाहिए, रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच। प्रोसेस से प्यार करो ना, प्रोसेस से प्यार करो। देखो, खेलना अच्छा लगता था क्रिकेट, इसलिए क्रिकेटर बने।
फिर ये जरूरी नहीं है कि जब इंडिया के लिए खेलेंगे तभी अच्छा खेलेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। गलियों में खेलते थे, क्रिकेट खेलने में मजा आता था, तो सोचा चलो प्रोफेशन बना लेते हैं, इससे कमाई भी हो जाएगी। अब अगर इंडिया के लिए खेलिए तो अच्छी बात है, नहीं खेला तो क्या, खेल से प्यार होना चाहिए। ट्रू ट्रू, डू बी हैप्पी एक्टिंग से विद प्यार व्हाट है, यू आर एक्टिंग डूइंग। से प्यार है या स्टारडम से प्यार है, एक्टिंग से प्यार है या अवार्ड से प्यार है। तो अगर एक्टिंग से प्यार है तो बाकी सब चीजें बेमायने हैं। तो जिसको स्टारडम से प्यार होगा ना, अगर वो नहीं मिलेगा तो अटक जाएगा। जिसको एक्टिंग से प्यार होगा वो अपना काम करता रहेगा। So someone here has written, believe in the journey, not the destination. प्रोसेस That's इज very, इम्पोर्टेंट, process is important. एंजॉय द प्रोसेस। फॉर आई मीन ये वही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आपका काम है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, फल किसी के हाथ में नहीं है, ये भी गारंटी। So आपने true. कर्म कर दिया, उसका फल आपको कब मिलेगा? हमें लगता है हमने 100% दे दिया, हमें कल ही फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। आप जब जब आपको लगता है आप डिजर्व करते हो, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। व्हेन गॉड थिंक्स इट्स द राइट टाइम फॉर यू टू डिजर्व इट, देन गॉड विल गिव यू। डिजर्विंग टाइम ऊपर वाला तय करता है, आप तय नहीं करते, चाहे आपने 1000% दे दिया हो। व्हेन गॉड थिंक्स यू डिजर्व इट नाउ, ही विल गिव इट यू नाउ। इफ ही थिंक्स यू डोंट डिजर्व इट राइट नाउ, ही विल गिव इट यू एट द राइट टाइम। हैव पेशेंस। प्रॉब्लम ये है, ठहराव नहीं है, पेशेंस नहीं है, सब चीजें बहुत जल्दबाजी में चाहिए, आज ही चाहिए। और अगर वो टाइम पे नहीं मिला जब उनको चाहिए, तब उनको लगता है कि नहीं होगा, दैट्स द एंड ऑफ इट। ये बेकार की तकियानुसी बातें हैं, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी भर मेहनत करते जाते हैं, और एक वक्त आता है जब उनको लगता है मिल जाना चाहिए, फिर भी नहीं मिलता, वो फिर भी और थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। परसीवरेंस इसे ही कहते हैं, कंसिस्टेंसी इसे ही कहते हैं। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4 कदम चलते हैं और उसके बाद नई रिजल्ट मिलता है तो लोग वापस लौट जाते हैं। अरे हो सकता है 4 कदम के 2 कदम के बाद, है उसके 4-5 कदम के बाद शायद कोई खजाना हो आपके लिए ऊपर वाले ने रखा हो, लेकिन आपने तो छोड़ दिया क्योंकि आप वापस चले गए। Sometimes I feel societal approval also holds them back. अभी अगर वैलिडेशन, या मतलब अगर सोसाइटी को अच्छा नहीं लगा या अप्रूव नहीं किया किसी ने, तो वो रुक जाएंगे, नहीं आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। किसने कहा है आपको? सोसाइटी ने आपके घर का दरवाजा खटखटा के कहा था मुझसे अप्रूवल मांगो? कोई आता है आपके घर तो आपने अपना अप्रूवल उनसे बांध लिया है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपने आप में संपूर्ण नहीं हो। आपको लगता है कि आप अपने आप में कंप्लीट नहीं हो। जब आप अपने आप में कंप्लीट नहीं होते तो दूसरे का सहारा और साथ मांगते हो। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, ये अगर इस सच को पहचान लो तो दूसरा आके ना, देखो साल्विका, दूसरा आके जिंदगी में एड ऑन बन सकता है, बोनस बन सकता है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं है वो। अगर आप नौकरी करते हो तो सैलरी होती है सर्वाइवल के लिए, बोनस होता है डिजायर्स के लिए। तो दूसरा बोनस है, सैलरी आप हो। तो किसी को भी चाहे कोई भी जिंदगी में आ जाए, उसको सैलरी नहीं बनाना है। सर्वाइवल आपका खुद पे कंप्लीट होना चाहिए, हैप्पीनेस आपकी खुद पे कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा आए तो ऐड ऑन करे बस। जब आप खुद को, You should be happy with one's true self, अपने आप में। जब आप खुद को किसी के कदमों में डाल दोगे, न्यौछावर कर दोगे ना खुद को, तो वो इंसान टेकन फॉर ग्रांटेड ले ही लेगा। हाँ, तो फिर परेशान होगे जिंदगी में, क्योंकि आप बार बार फिर उसी के कॉल का, उसी के मैसेज का, उसी के टेक्स्ट का इंतजार करोगे और आपकी सारी जिंदगी उसी से सीमित हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए जिंदगी में। ऐसा होगा तो इट्स कॉल्ड हैप्पीनेस डिपेंडेंसी, एंड it's also a big cause for loneliness. What we do in sessions, when we go detailed into a topic and we try and eradicate that topic from the root, ताकि हम कोई भी टॉपिक को, कोई जैसे हम मेंटली स्ट्रांग है, लोनलीनेस है, एंजाइटी है, या फिर हम स्ट्रेस की बात करते हैं, या फिर हम कल हम टॉपिक कर रहे हैं हाउ टू डील विद नेगेटिविटी। सो द आइडिया इज कि हम डेप्थ में जाएं और समझें कि परेशानी कहाँ पर है। अक्सर हम क्या करते हैं ना, ऊपर ऊपर से चीजों को ठीक कर देते हैं। ऊपर ऊपर से बूंद को मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा, उसका जो डेप्थ कोर के अंदर है उसको पकड़ना जरूरी है ना, उस जड़ को पकड़ते हैं और समझते हैं। सो कभी सोचते ही नहीं, बैंडेड लगा देते ऊपर से बस। बैंडेड से कुछ नहीं होता, उस जख्म की वजह क्या है। तो एनीवन हु वांट्स टू जॉइन टुमारोज सेशन आल्सो, दे कैन आल्सो जॉइन। Just email on contact@shareandgrow.in. I'm sure that will be very helpful. Yeah, I think it's very important for today's generation, and we have 50-60 participants, in the group. So it is always wonderful to have an interaction, to talk to people, to understand their point of view, and then I also guide them whatever I have learned about that particular topic in detail. और फिर बहुत सारी बातें हम पर्सनल एक्सपीरियंसेस से समझाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या फेस किया है और कैसे हम उनसे बाहर आए हैं। तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन पीपल अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इट,
And of course, with the material and with the scientific research and everything, we really help them out. That's very true, sir. I urge everyone to join it. Definitely, it will be very helpful to you all. I will, sir, definitely. Please do. So anyone who wants to join, they can email on contact, CONTACT, contact @shareandgrow.in. That is our email ID. Definitely, sir. I'll let everyone know. Alag se bhi. Wonderful. Thank you. Let's help people. Yes, sir. Sir, anything else that you would want to share? It. That I will just take a leave now because I also have live at 5 p.m. But thank you so much. It was Thank you, sir. Thank you so much for giving us your precious time and to inspire so many people with your beautiful words. And hope to see you in college sometime. Yes, Thakur College, sir. We hope to see you. Yes, we'll do that for sure. Thank you so much. It was wonderful talking to you. And you're beautiful and keep smiling. God bless you. Thank you so much, sir. Wishing you also all the best. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you for watching, guys. See you all on the next live.